dear St. Paul's faculty members. We all have gathered here to celebrate the 10th International Yoga Day as per the protocol given by the Indian Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, better known as Ayush. We all know the Ayush Ministry. It was in the year 2014 that India's Prime Minister, Mr. Narendra Modi's appeal to celebrate the International Yoga Day on June 21st was accepted by United Nations. The Yoga Protocol intends to create general awareness among people and community to get harmony through yoga. The theme of this year for yoga is Yoga for Self and Society, which focuses on self-control, meditation and well-being, and also bring harmony in the society so that individual consciousness becomes universal consciousness and a balance may be created between man and nature. Yoga is the biggest export of India to the West. Yoga is the biggest export of India to the West. This has become a well-known proverb now. Though our Prime Minister, Mr. Modi, is one of the India's biggest yoga advocate, least do we know that, I'm just quoting one example which is coming to my mind, least do we know that the Canadian Prime Minister, Justin Trudeau, has put his yoga poses on public display, and his father, former Prime Minister of Canada, Mr. Pierre Trudeau, was an internationally known person in the field of yoga as a yoga enthusiast. This is one of the examples on the international platform. Needless to mention that many global business leaders and celebrities also have embraced yoga. A recent study shows that meditation and yoga practice are linked to reduced volume in brain region that is tied to negative emotions. So it helps us in positive thinking. Does yoga need more definitions? No, not at all. Dear intellectuals, you all have heard about BKS Iyengar Yoga Institute at Pune, as Mr. Iyengar is considered to be the founder of modern yoga. Mahatma Gandhi's Yoga Ashram at Pune, Swami Parthasarathy's Yoga Center at Lonavala, Sri Sri Ravi Shankar's Ashram, Isha Yoga Center of Sadhguru, which has been even recognized by UNESCO, and many more. So now I invite our yoga instructor, Mrs. Dimple Solanki, to start with today's yoga session. And dear teachers, the vocal instructions during the yoga practice will be given by our dear Sunanda Vats ma'am. So I call upon both of them. शुभ प्रभात। प्लीज आप अपने अपने स्थान पे बैठिए। टेंथ इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि मैम ने बताया, इस साल का जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। अभी तक की जितनी भी योग की थीम है वो सभी की सभी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। जितनी भी आज से पहले की ये 10th योगा डे है तो 9th तक की जितनी अभी तक की जितनी सारी थीम है वो जन कल्याण और समाज कल्याण के लिए है। उसी पैटर्न पे ये सारी थीम रखी जाती है। इस बार का जो थीम है वो इस बात को दर्शाता है कि योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देता है। योग आंतरिक और बाहरी दुनिया के साथ एक बैलेंस क्रिएट करता है। आप जब भी योग करते हो तो आप इंटरनल बैलेंस क्रिएट करते हो, आंतरिक और बाहर की दुनिया के साथ में एक अच्छा हार्मोनी क्रिएट करते हैं आप लोग।
स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए योग अति महत्वपूर्ण सहयोग है जो देश के हर वर्ग के नागरिक के मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। पहले योग केवल ऋषि मुनियों तक ही सीमित था, बट उसके बाद में महर्षि पतंजलि ने इसको आम जनता तक उन्होंने अष्टांग योग दिया। पतंजलि महर्षि से पहले योग सारे ग्रंथों के अंदर ऐसे फैला हुआ था और एक सूत्र में उन्होंने बांधा पतंजलि योग सूत्र के थ्रू। पतंजलि योग सूत्र के अंदर 195 सूत्र बनाए उन्होंने और पूरा योग को इस तरीके से उन्होंने बनाया, इस तरीके से डिजाइन किया कि वो ऋषि मुनियों तक ही सीमित न रखे, आम जनता तक पहुंचे। और इस सूत्र के अंदर उन्होंने 195 सूत्र को जब बनाया तो उनको लगा कि ये बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा है, तो उन्होंने पूरे 195 सूत्र को और शॉर्ट रूप में करके उन्होंने फिर एक अष्टांग योग बनाया। अष्टांग योग ऐसा है जो इंसान अगर अपने जीवन काल के अंदर उसका नियम पालन करता है तो वो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि के साथ साथ में पूरा एक बैलेंस क्रिएट करता है और लास्ट जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो लास्ट समाधि पार्ट दिया गया वो भी उसको प्राप्त कर लेता। तो अष्टांग योग के 8 लिम्ब है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान समय के अंदर योग इतना प्रचलित हुआ पर सब लोग आसन के ऊपर आ गए। खाली अष्टांग योग का जो 3rd पार्ट है उसके ऊपर आ गए, बाकी की सारी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। यम, नियम और आसन, आप जितने भी योग किया जाता है वो सारा आसन के ऊपर है, जबकि अष्टांग योग पूरा क्या बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग बहुत सूक्ष्म है, बहुत डीप में है, पर योग को खाली आसन के ऊपर लेके आ गए। तो मैं आपको आज के योगा डे के ऊपर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप आसन के ऊपर खाली योग को न माने। जब तक आप खाली आसन कर रहे हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे आप जिम कर लो, वो तो फिर आप योग को बहुत अच्छे से डीप में समझे कि योग क्या है। और ऐसे भी अगर आप योग कर रहे हैं तो खाली आसन के साथ में ना करें, उसको पूरा प्रॉपर विधि विधान से करें और अच्छा योग टीचर जो आपको गाइड करता उसके अकॉर्डिंग करें। अदरवाइज आप किसी भी वीडियो को देख के, किसी ऐसे ही जिनको नॉलेज ही नहीं उनसे योग बिल्कुल मत सीखें, क्योंकि वो गलत नॉलेज होगा आपके अंदर और जो गलत नॉलेज होगा उसको कोई भी क्लियर नहीं कर सकता बाद में भी, आप उसी तरीके से योग करेंगे। इसलिए आप जब भी योग के लिए आप मन से एक उस हिसाब से करें कि मुझे जो ज्ञान दे रहा है योग का, या मैं जिससे योग सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ वो प्रॉपर इसमें योगाचार्य है या नहीं, या उनको प्रॉपर इसका ध्यान है या नहीं, या उनको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं आसन का, प्राणायाम का। अदरवाइज योग के अंदर जो भी इंजरीज होती है वो कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता बाद में। तो आप प्रॉपर तरीके से योग का अपने जीवन में अध्ययन करें और उसको सीखें, उसके बाद में आप उसको अप्लाई करें अपने लाइफ के अंदर। जब आप इसको प्रॉपर तरीके से करते तो योग 3 जगहों पे वर्क करता है, एक फिजिकल बॉडी पे, एक मेंटल बॉडी पे ऊपर और एक आध्यात्मिक स्तर पे भी योग आपका वर्क करता है। पर आपको पता है, आपने कितनी बार सुना होगा पुराने ऋषि मुनियों को कि कुछ ऐसी कहानी है या स्टोरीज है पुरानी जिसके अंदर ऐसे बोला जाता है कि ऋषि मुनि किसी पक्षी का रूप धारण कर देते थे या किसी लॉयनर इस टाइप के किसी जानवर का रूप धारण कर देते थे। एक्चुअली वो योग के लेवल पे इस तरीके से चले जाते थे कि जैसे अगर कोई हंस के टाइप का एक हंसासन होता, एक ट्री पोस्चर होता वृक्ष के जैसे, तो वो इस टाइप से किसी भी आसन, मत्स्य आसन, मान लो कोई ऋषि मत्स्य आसन को साथ लेता था, वो इतने टाइम तक, लंबे टाइम तक उस मत्स्य आसन में रहता था, तो वो मत्स्य की मतलब फिश की जो एनर्जी होती है उसके अंदर, अपने बॉडी के अंदर वो क्रिएट कर देता था। मतलब मन के स्तर पर वो इतना साथ देता था उस आसन को, लोगों को लगता था कि कोई फिश बैठी है या कोई हंस बैठा है या कोई टाइगर बैठा है, इस टाइप से वो दृष्टि भ्रम होता था उनको कि ये ना, वो इतनी साधना के द्वारा उस आसन को साधते थे कि वो ऐसे उस स्थिति में घंटों बैठ सकते थे। पतंजलि योग सूत्र के अंदर आसन की एक डेफिनेशन दी गई है, स्थिर सुखम आसनम, मतलब लंबे टाइम तक अगर किसी आसन में आप बैठे रहते हो तो वो होता है आसन। तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि आसन को इतने लंबे टाइम तक साथ देते थे कि घंटों घंटों वो उसी आसन में बैठे और लोगों को दृष्टि भ्रम क्या होता था कि ये कोई पक्षी बैठा है।
कितनी साधनाएं होती थी उस आसन के ऊपर। तो योग बहुत डीप है, बहुत सूक्ष्म है। आप मन के स्तर पे जब योग को समझते हैं, मन के स्तर के ऊपर, तो आप उसी एनर्जी में आ जाते हैं। आप अभी सिंपल आसन करोगे, आपने आसन किया छोड़ दिया, नहीं, आसन फिजिकल बॉडी के ऊपर होता है, फिर मन के भाव के ऊपर, ब्रीथ के ऊपर होता है, आपकी सांसों की लयबद्धता के साथ में आसन होता है। ऐसे ही आसन नहीं हो रहा है कि आप पीछे की ओर झुक रहे, सांस छोड़ रहे, ले रहे, कुछ नहीं। जब आप आसन करते हो तो इसकी एक पूरा एक तरीका है कि किस तरीके से आसन किया जाता है। आप ब्रीथ के साथ आसन करोगे, आप मन के भाव के साथ में आसन करोगे। जब भी आप आसन करोगे आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं, आप पूरा का पूरा अपना पूरा ध्यान अपने आसन के ऊपर केंद्रित करो, तब तो जाके होता है योग। बाकी आप ऐसे ही योग कर रहे हो तो वो है फिजिकल एक्टिविटी खाली। तो आप धीरे धीरे अपने मन को अपने प्राण शक्ति के साथ में, अपनी श्वास के साथ में, अपने मन को उसी लय में आसन के साथ में क्रिएट करें। तो आज का जो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो भी आसन होंगे, आप पूरे मन, पूरे शांत मन से ब्रीथ के साथ में सुनंदा मैम जो भी बताएंगे कि आपको कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप आसन करेंगे। अब मैं सुनंदा मैम बस को इन्वाइट करती हूँ कि वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आगे की पूरा योग करवाएं। सबसे पहले तो अगर किसी का मोबाइल यहाँ है और साइलेंट मोड पे कर सकें तो जल्दी कर सकते हैं। अब हम सभी प्रेयर करेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं सावो मनांसि जानितां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। May you move in harmony. May you speak in unison. Let our mind be equanimous like in the beginning. Let the divinity manifest in your sacred endeavors. Shanti, Shanti, Shanti. सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम नेक बेंडिंग के लिए अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे, पैरों के बीच में थोड़ा गैप, आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे अपने नेक को पीछे की ओर लेके जाएंगे, आकाश की ओर। धीरे धीरे अपने नेक को आगे की ओर फॉरवर्ड बेंड करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके चिन आपकी नेक से टच हो सके। धीरे धीरे वापस पीछे की ओर सांसें सामान्य लेते हुए धीरे धीरे वापस आगे की ओर। अब आप वापस सामने की ओर देखेंगे। अब आप अपने नेक को लेफ्ट साइड की ओर बेंड करेंगे, लेफ्ट साइड की ओर। धीरे धीरे राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड, राइट साइड, धीरे धीरे वापस सामने। अब आप अपने नेक को धीरे धीरे लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, घुमाते हुए लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे नेक रोटेशन में। एक बारी फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से
श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से वापस आएंगे। यह आपके अनुसार है, धीरे धीरे इस क्रिया को दोबारा दोहराएं। लेफ्ट साइड से श्वास भरते हुए अपने नेक को रोटेट करने का प्रयास करेंगे और राइट साइड से वापस आते हुए अपनी श्वास छोड़ेंगे। Keep your shoulder relaxed and steady. Now relax. अपनी बैक पे से अपने हाथ हटा सकते हैं। Now shoulder stretching. अपने दोनों हाथ सामने की ओर, अपने शोल्डर के पैरेलल धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। Do not overstay. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर अपने दोनों हाथ लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, अपनी एल्बो स्ट्रेट रखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की ओर, धीरे धीरे आपके शरीर के पास। नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ अपने कंधे पे रखेंगे, दोनों कोहनियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पहली पोजीशन में वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 release and relax. Next trunk movement। दोनों हाथ सामने की ओर, धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड पूरी तरह अपना अपर बॉडी पोर्शन पीछे की ओर लेके जाएंगे। केवल अपर बॉडी पोर्शन, आपके पैर नहीं हिलेंगे। वापस से सामने आते हुए अब राइट साइड की ओर, बस अपर बॉडी पोर्शन को पीछे की ओर जितना हो सके उतना, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे उतना। वापस से सामने आते हुए लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे। This क्रिया makes your spine flexible and improves digestion। एक बार फिर से सामने, राइट साइड, वापस से सामने की ओर, रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ अपने बैक पर रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड करके केवल अपर बॉडी पोर्शन को पीछे की ओर बेंड करेंगे। वर्टिगो के केस में इस पोस्चर को अवॉइड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर सीधे। एक बार श्वास भरते हुए फिर से पीछे की ओर बेंड करेंगे। This helps management of cervical spondylitis। वापस से सामने की ओर, एक बार फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, जितना आपसे बेंड हो सके उस बेंड को महसूस करिए, उस स्ट्रेच को महसूस करिए। श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन में आएंगे। अब श्वास से सामान्य। नेक्स्ट आसन त्रिकोण आसन। अपेक्षाकृत अपने पैरों के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप। दोनों हाथ अपने शोल्डर के लेवल तक आप स्प्रेड करेंगे। लेफ्ट पंजे को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फीट को टच करें और ऊपर राइट हैंड की हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। वापस अब
राइट फीट को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट फीट को सीधा कर लीजिए और राइट फीट को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए राइट हैंड से टच करेंगे। जितना हो सके उतना स्लिप डिस्क और sciatica के जो भी उससे सफ़र कर रहे हो वो ना करें। वापस से सामान्य पोजीशन में आएंगे। एक बार फिर से लेफ्ट लेग को के पंजे को थोड़ा सा बाहर निकाल के लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से टच करें और ऊपर राइट हथेली को देखने का प्रयास श्वास से सामान्य लेंगे। जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना। वापस से अब राइट लेग से सेम अभ्यास, राइट पंजे को थोड़ा बाहर निकालें, राइट हैंड से टच करें, लेफ्ट हैंड की हथेली को देखेंगे ऊपर की ओर। वापस से सामान्य पोजीशन में आएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन वृक्षासन। अपने लेफ्ट लेग को होल्ड करेंगे, अपने थाइस पर उसका बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हमें नमस्कार मुद्रा अपने शरीर के अनुसार जहां आप मुद्रा बना सकते हो, जहां आप अपने लेग को रिलैक्स रख सकते हो वैसा रख सकते हैं। रिलीज। वापस आएंगे इस पोजीशन से। अब आप अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे। सामने एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। वापस रिलीज। एक बार फिर से लेफ्ट लेग से ट्राई करेंगे सेम आसन। लेफ्ट लेग को अपने थाइस पर रखकर बैलेंस बनाएं। सामने नमस्कार मुद्रा। Release. Repeat from right leg. This improves your neuromuscular coordination and balance, alertness and concentration. Release and relax. Next आसन ताड़ासन। दोनों हाथ सामने की ओर फिंगर लॉक बनाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अपनी बॉडी को ऊपर की ओर थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, फील करेंगे स्ट्रेच को अपने हाथों में, पैरों में, अपने अपर बॉडी पोजीशन में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। हील्स उठाएंगे, अपनी टो पे बैलेंस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिपीट दिस आसन वंस अगेन। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। दिस आसन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन योर बॉडी, करेक्ट्स बॉडी पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन पादहस्तासन। दोनों पैरों में आप देख सकते हैं थोड़ा कम गैप, थोड़ा पास में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपर बॉडी पोर्शन को बेंड करेंगे। जिनसे बेंड हो सकता है उतना। आपका शरीर आपका शिक्षक है जो आपको बताएगा कि आपकी क्या लिमिट्स हैं। आप जिनसे कम हो रहा है वो सामने की ओर भी अपने हाथ कर सकते हैं। वापस आएंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रिलीज। श्वास लेते हुए वापस। रिलीज एंड रिलैक्स। अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे दंडासन में। दोनों पैर सामने की ओर।
दोनों पैर सामने की ओर, अपने पैरों को रिलैक्स करिए। दंडासन में आप अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, अपने फीट को मूवमेंट दें, रोटेट करें, अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच करके महसूस करें कि उस पर स्ट्रेच आ रहा है, और जो आपने आसन अभी करे हैं उनसे आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है। नेक्स्ट आसन बटरफ्लाई आसन। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, फिंगर लॉक से होल्ड करेंगे, आंखें बंद करके अब आपको अपने पैरों के ऊपर फ्लैप करना है, ऊपर नीचे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए हर आसन को करें। इसमें ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल लेंगे, सहजता से करेंगे, तभी आप उसको ज़्यादा देर लंबे समय तक कर पाएंगे। Now release and relax. वापस से दंडासन में बैठेंगे। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं, जिनको भी नी बोन पेन या एंकल इंजरी हो वो उसको अवॉइड करेंगे और वो सुखासन में बैठेंगे। बाकी सभी वज्रासन में बैठें। वज्रासन is very good for digestion, strengthening your thigh muscles, calf muscles. Sit in Vajrasan. Close your eyes. Feel this आसन। पंजे बाहर की ओर होंगे, दोनों पैर आपने फोल्ड करके अपने थाइस के नीचे। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो सुखासन में बैठ सकते हैं अपने अनुसार, जिसमें वो थोड़े लंबे समय तक बैठ सकें। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Next आसन अर्ध उष्ट्रासन। अपने वज्रासन की पोजीशन में ही अपने नी की सपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे, दोनों हाथों को अपने बैक पे रखेंगे, अपने अपर बॉडी पोर्शन को पीछे की ओर बेंड करेंगे जितना आपसे हो सके। एब्डोमिनल इंजरीज, आर्थराइटिस और वर्टिगो में इसको अवॉइड कर सकते हैं। जितना बेंड कर सकते हैं बस उतना ही बारी श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे। श्वास से छोड़ते हुए आगे की ओर। फिर से श्वास लेते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। रिलीज एंड रिलैक्स। वज्रासन में ही बैठेंगे। नेक्स्ट आसन शशांक आसन। बैठे बैठे अपने दोनों घुटनों के बीच में गैप करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, स्ट्रेच फील करें। फिर खरगोश की भांति आगे की ओर अपने अपर बॉडी पोर्शन को बेंड करेंगे। अपने फेस को, अपने हाथ को फ्लोर पर टच कराएं और एक स्ट्रेच दें, जैसे खरगोश एक अपनी बॉडी को एक अच्छा सा स्ट्रेच देता है। फील करें इस स्ट्रेच को। एक बारी पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे। हम ज़्यादा देर तक श्वास छोड़ नहीं सकते, तो बेंड करने के बाद में आप सब श्वासें सामान्य लेंगे, लेकिन जब वापस पुनः पहली पोजीशन में आएंगे, श्वास भरते हुए ही ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से अपने अपर बॉडी पोर्शन को आगे की ओर। दिस आसन हेल्प्स
to reduce stress and anxiety. एक बारी फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, release and relax. Now release your Vajrasan, दोनों पैर सामने की ओर, दोनों पैर सामने की ओर दंडासन में जैसे आपने पहले अपने आए हुए आसन से आए हुए स्ट्रेन को रिलैक्स करा था, वैसे ही स्ट्रेन को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन वृक्षासन। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, सामने देख सकते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे और पीछे की ओर देखने का प्रयास। जितना आप अपने अपर बॉडी पोर्शन को पीछे की ओर देख सकते हैं, पैर का जो भाग पकड़ सकते हैं वो पकड़ेंगे। फीट पकड़े तो बहुत ही अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। वापस आएंगे। अब आप अपने लेफ्ट लेग को सीधा करें, लेफ्ट हैंड को आगे लाएं, राइट लेग को फोल्ड करें, राइट हैंड को पीछे रखें, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को होल्ड करेंगे और पीछे की ओर देखें। वापस आएंगे, राइट लेग को सीधा करें, राइट हैंड को अपनी पोजीशन पे। अब लेफ्ट लेग को वापस से होल्ड करें, लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर रखें, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को होल्ड करेंगे। Now release from left side. अब राइट लेग फोल्ड करेंगे आप अपना, राइट हैंड पीछे रखिए, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को होल्ड करें। Now release and relax. दोनों पैर सामने की ओर। अब आप सभी अपने स्थान पर प्रोन पोजीशन में उल्टे होकर लेट जाएंगे। मकरासन में रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, नो हेसिटेशन। दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने शोल्डर पे रखिए। मकरासन, क्रोकोडाइल पोस्चर। This promotes relaxation of full body. अपनी एनर्जी को बिल्कुल खराब ना करें। बहुत अच्छे आसन कर रहे थे, शांत रह के वापस से आसन करें। This promotes relaxation of the whole body, helps in recovery of back problems. Next आसन भुजंगासन। अपने दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर के बराबर में रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जितना आप उठा सकें, जहां आप कंफर्टेबल हो, थोड़ी सी एल्बो बेंड होगी। श्वास छोड़ते हुए वापस अब अपने अपर बॉडी पोर्शन को नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए वापस से अपने बॉडी पोर्शन को ऊपर की ओर लेके जाएं, केवल नेवल तक, नेवल से ऊपर नहीं। श्वास छोड़ते हुए वापस से नीचे। श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी पोर्शन को उठाएंगे नेवल तक। दोनों पैरों को पीछे से मिलाने का कोशिश करेंगे, पास पास में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। Release and relax in Makrasan once again. नेक्स्ट शल्भासन। अपनी चिन ग्राउंड पे, हथेलियां थाइस के नीचे, जो मुट्ठी बना के रख सकते हो अच्छा है। जिनको थाइस पे नॉर्मली अपना हाथ नीचे की ओर रखना है वो रख सकते हैं। अब अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे,
आप उठा सकते हैं उतना। अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को वापस नीचे की ओर लेके आएंगे, श्वास बढ़ते हुए राइट लेग उठाएंगे, वापस धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे की ओर। इन्हेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे। This relieves sciatica and lower back pain. श्वास छोड़ते हुए वापस अपने पैर को नीचे लाएंगे। अब राइट लेग उठाएंगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर अपने पैर को लेके आएंगे। दिस इम्प्रूव्स योर लंग कैपेसिटी। अब दोनों पैर एक साथ उठाने हैं, जितनी आपकी क्षमता हो उतना। दोनों पैर एक साथ उठाने हैं, वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने पैर दोनों वापस। एक बारी पुनः दोहराएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर अपने दोनों पैर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। Release and relax in Makrasana once again. अब लेफ्ट साइड से टर्न होके आप आराम से सीधे होके बैठ जाएंगे। लेफ्ट साइड से टर्न होके आप सीधे होके बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, आसनों द्वारा आए हुए स्ट्रेस को रिलीज करें। दोनों हाथ अपने शरीर के पास में रखें, हथेलियां फर्श से टच कराएं। नेक्स्ट आसन सेतु बंद आसन, दोनों पैर फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों को लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से, राइट लेग को राइट हैंड से होल्ड करेंगे, सेतु बंद आसन। और केवल मिडल बॉडी पोर्शन उठाएंगे, सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन, केवल मिडल बॉडी पोर्शन को उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, नीचे वापस फ्लोर पर अपने बॉडी पोर्शन को रखेंगे। श्वास बढ़ते हुए एक बारी फिर से उठाएंगे, सेतु बंद आसन। केवल अपने मिडल बॉडी पोर्शन को उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस एक बारी में श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे अपने बॉडी पोर्शन को, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। This asana relieves depression, anxiety and strengthens your lower back muscles. Now release, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। Now उत्थान पादासन, दोनों हथेलियां फर्श की ओर, अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं केवल लेफ्ट लेग को उठाएंगे। This balances your navel center, मणिपुर चक्र को बैलेंस करता है ये। लेफ्ट लेग को धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए राइट लेग उठाएं। This also helps in overcoming depression and anxiety. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपने पैर को नीचे लेके आएंगे, श्वास लेते हुए वापस से लेफ्ट लेग को उठाएं। This strengthens your abdominal and pelvic floor muscles. श्वास छोड़ते हुए वापस से नीचे की ओर अपने पैर को लेके आएंगे। राइट लेग को अब ऊपर की उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर अपने दोनों पैर आएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों पैर पास पास में। अब हम करेंगे अर्धलासन, दोनों पैर एक साथ उठाने हैं,
हैं 90 डिग्री तक, जिससे जितना उठ पाए, जितने आप अपने पैर उठा पाएंगे करते हुए उतने उठाएंगे। अपने शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेच दीजिए, काफ मसल के स्ट्रेच को फील करिए, नी को सीधा रखने का कोशिश करें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। मुंह से श्वास नहीं छोड़नी है, हर बार नाक से ही श्वास छोड़नी है। एक बार पुनः इस आसन को दोहराएं। दोनों पैर उठाएं 90 डिग्री तक, आपसे जितना उठ सके उतना। शोल्डर्स पे आपको बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपने पैर को एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे वापस हमें रिलैक्स हो। शवासना आराम से दोनों हाथों के रिलैक्स करें बॉडी, जो भी आपको महसूस हुआ है, जिस बॉडी पार्ट पे, स्टमक पे, एब्डोमिनल मसल्स पे स्ट्रेन महसूस हुआ है उसको रिलैक्स करिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, केवल लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए लेफ्ट लेग के नी को अपने फेस के पास लाने की कोशिश, या फेस का कोई भी पार्ट टच कराने की कोशिश करेंगे। दिस रिलीव्स योर ब्लोटिंग सेंसेशन, feeds in digestion, it helps in good digestion, release, लेफ्ट लेग से रिलीज करेंगे। अब राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को अपने फेस के पास, दूसरा पैर सीधा होगा, अपने फ्लोर पर सीधा रख लीजिए दूसरे पैर को। आप रिलैक्स ही महसूस करेंगे, अपने फेस के पास अपने फेस का जो भी पार्ट टच कराने की कोशिश करेंगे। रिलीज from right leg. Now fold your left leg once again. Hold it and try to touch any part of your face. If possible, head. Now release from the left leg. Hold your right leg once again. अब बॉडी पोर्शन को भी उठा के थोड़ा सा अपने नी पर टच कराने का कोशिश करेंगे। Now release from your right leg. अब दोनों पैर एक साथ फोल्ड करेंगे, फिंगर लॉक से दोनों पैरों के नी को अपने फर्स्ट फेस के पास आने की कोशिश करेंगे। This tones up your back muscles and spinal nerves. धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर दोनों पैर फोल्ड करिए। This asana generates deep internal pressure, improves stretching of the highly complicated network of muscles, ligaments, tendons, and pelvic and wrist region. धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों पैर सीधे करेंगे। शवासन में रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हथेलियां आसमान की ओर, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स। दिस इज शवासन। आप अपना पूरा ध्यान अपने लेफ्ट लेग की ओर लाएंगे। Relax your sole, toes, ankle joint, calf muscles, knee joint, thigh muscles. हल्का सा हिला के अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आपका ध्यान आपके राइट लेग की ओर। Relax your right leg sole, toes,
muscles, knee joint, thigh muscles. बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने दोनों पैरों को। अब आपका ध्यान आपके दोनों हाथों की ओर। रिलैक्स योर फिंगर्स, थंब, palm, wrist joint, lower hand muscles, upper hand muscles, shoulder joint, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई स्ट्रेन नहीं आपके शोल्डर पर, बिल्कुल रिलैक्स। आपका ध्यान आपके एब्डोमेन पर। Relax your abdominal muscles, back muscles, chest, neck. Now focus on your face. Relax your chin, cheeks, lips, nose, eyes, eyebrows, eyelashes, forehead, head. Relax your brain. जो भी विचार आ रहे हों या जा रहे हों, धीरे धीरे बिल्कुल शून्य कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। किसी भी व्यक्ति, किसी भी विचार को धीरे धीरे अपने मस्तिष्क से हटाएं और बिल्कुल शून्य मस्तिष्क को अनुभव करें। बिल्कुल सामान्य श्वास है। अपनी चेतना को पुनः महसूस करते हुए अपने दोनों पैरों को हल्का सा हिलाएंगे, दोनों हाथों को, और आराम से अपने स्थान पर सुखासन में बैठ जाएंगे। लेफ्ट साइड से टर्न होके ही बैठें। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम। जिस पॉस्चर में आप कंफर्टेबल हो और कुछ देर तक बैठ सकते हैं उसमें बैठेंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे या शंख मुद्रा बनाएंगे। थोड़ी सी एल्बो बेंड रखेंगे। अपनी एनर्जी को अपने अंदर लेना है। सर्वप्रथम हम करेंगे कपालभाति। केवल श्वासें छोड़ने पर ध्यान देंगे। एक जैसे स्ट्रोक की तरह हम श्वासें केवल छोड़ेंगे। वो स्वतः ही अपने अंदर जा रही है। अपने कपालभाति के मूवमेंट को काउंट करेंगे मन ही मन। जब आपको कपालभाति के दौरान थकावट या महसूस हो कि स्ट्रेन पड़ रहा है तो एक लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें और पुनः कपालभाति को दोहराएंगे। Only forceful exhalation here. केवल आपका स्टमक मूवमेंट आपको महसूस होगा, शोल्डर मूवमेंट नहीं होगा और ये श्वास पुनः स्वतः ही अंदर जा रही है। आपको श्वास लेने के लिए इस कपालभाति में किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। कपालभाति purifies the frontal air sinuses. This helps in overcoming coughing disorder. जिनको हाइपरटेंशन है धीरे स्ट्रोक लगाएंगे, डीप ब्रीथ भी लेंगे।
Kapalbhati rejuvenates the whole body, keeps your face glowing and vibrant. Release. Complete your round. Next is Anulom Vilom Pranayam. दोनों हाथों से शंख मुद्रा बनाएं। अपने हाथ की फर्स्ट फिंगर को थंब के रूप में लगाकर थंब को एक नोस्ट्रिल पर रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल पे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन, फिर आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट एंड एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। फिर आप राइट नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन, ऑल्टरनेट ब्रीथ करेंगे, फिर दूसरे नोस्ट्रिल को ओपन करके वहां से एक्सेल करेंगे। महसूस कीजिए आप जितनी श्वास ले रहे हैं उससे दुगनी श्वास एक्सेल कर रहे हैं। जितनी श्वास आपके भीतर जा रही है उससे दुगनी आपके बॉडी से बाहर आप एक्सेल कर रहे हैं। सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त कोई आवाज नहीं करेंगे। बहुत ही शांति से आपकी जो प्राणवायु है आपके शरीर के अंदर की ओर जा रही है और अशुद्ध वायु आपके शरीर से बाहर आ रही है। Breath should be slow, steady and controlled. Now complete your round. Next, शीतली प्राणायाम। अपनी टंग को एक ट्यूब की तरह फोल्ड करेंगे। लंबा गहरा श्वास मुंह से लेंगे। एक कूलिंग इफेक्ट महसूस करेंगे। थोड़ी सी मिनट रोकेंगे, सेकंड रोकेंगे और दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ आप जब श्वास छोड़ेंगे दोनों नोस्ट्रिल से एक्सेल करें। Repeat once again. Roll your tongue from the sides to shape it as a tube. Now hold your breath and slowly exhale through both the nostrils. Repeat once again. It has cooling effect on body and mind. It is very beneficial for the person, those who are suffering from hypertension, high blood pressure. अपने अनुसार ये क्रिया दोहराएं। शीतली प्राणायाम। This pranayam relieves indigestion,
disorder caused by cough, bile. This pranayama also satisfies the thirst and hunger. Complete your round. Normalize your breathing. बिल्कुल सामान्य श्वास लें. नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम. अपने थंब से अपने ईयर को हल्का सा प्रेस करेंगे. अपनी फिंगर्स को अपनी आंखों पर और फेस पर रखेंगे. श्वास भरेंगे. श्वास छोड़ते हुए भ्रमरी के समान हमिंग वॉइस करते हुए श्वास छोड़ेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए वह श्वास आप अपने मस्तिष्क में वह साउंड, वो भ्रमर के समान जो साउंड है वो अपने मस्तिष्क में सुनेंगे. वापस से ब्रीद इन, श्वास छोड़ते हुए इस श्वास को अपने मस्तिष्क में महसूस करें. Once again, breathe in, लंबा गहरा श्वास लें. श्वास छोड़ते हुए अपनी स्वयं की आवाज को, हमिंग वॉइस को अपने मस्तिष्क में सुनेंगे. Once again, लंबा गहरा श्वास लेंगे. श्वास छोड़ते हुए इस वॉइस को अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करेंगे. Now complete your round. आप सभी ध्यान मुद्रा में अपने दोनों हाथ बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में रखेंगे. आंखें बंद करेंगे. बिल्कुल रिलैक्स. आप सभी ये संकल्प लेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है. इसी में हमारा आत्म विकास समाया है. मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ. आप सभी प्रेयर के लिए अपने हाथ जोड़ेंगे. Join your hands. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. अब आप सभी अपने स्थान पर योग निद्रा के लिए लेट जाएंगे. अपने दोनों हाथों को अच्छे से रख करें. अपने फेस के हर एक पार्ट को टच करें.
अपने स्वेट को, अपनी मेहनत को महसूस करें। अपने हाथों की जो वार्मथ है उसको अपने फेस पर महसूस करें। रिलैक्स करें अपने फेशियल मसल्स को। दोनों हाथ वापस एक बार ध्यान मुद्रा में रखें। महसूस करिए कि सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पर पड़ रहा है और वह आपको पूरी तरह ब्लेसिंग्स दे रहा है, अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है। फील योर वे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, जो आपके मस्तिष्क को, आपकी सभी नाड़ियों को, आपके हर एक ऑर्गन, हर एक सेल को बिल्कुल रिलैक्स कर चुका है और आप उसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज का योगा अभ्यास इतना है। धन्यवाद। So today's yoga session has come to an end. On behalf of St. Paul's School family, I extend gratitude to our Prime Minister Shri Narendra Modi for getting recognition for yoga on the international platform. That is why we all are celebrating this day. I also thank Father Principal for motivating all of the teachers to participate in today's yoga session and helping the yoga instructor to organize such a nice yoga session. Special thanks to our yogini, Madam Dimple Solanki, who has carried out this session very smoothly, and we all feel very light and rejuvenated. And we feel that our body is gaining strength. And in the beginning of the year, we feel refreshed. Thanks to Madam Sunanda Vats for very smoothly conducting today's yoga session. Your calm voice itself adds so much to the postures and actions of Dimple ma'am. Very soothing voice. Thank you, ma'am. I also thank all of our PTIs, sound, light, photography and videography support team for their support in carrying out today's yoga session successfully. Thank you one, thank you all.